اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. الذين ينفقون في السراء والضراء وكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين الناس والله يحب المحسنين. الذين اذا فعلوا فاحشات او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. ابھی حضرت صاحب نے آیتیں پڑھی تھی. محسنین، جب آپ لفظ محسنین کا قرآن کے اندر تذکرہ کریں تو جو عقلی مفسرین ہیں نیکوکار اس کا ترجمہ کرتے ہیں. نیکوکار بھی ظاہر ہوتے ہیں، لیکن محسن کا ترجمہ صوفیہ کرام ہے. حالت احسان سے یہ لفظ نکلا ہے، اور احسان اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے عبادت کر رہا ہے. نماز پڑھا تو گویا اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، تو دیکھ دیکھ کے گویا گفتگو کرنے والا وہ صوفی ہے. تو صوفیہ کی جو ہے وہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں کسی رائی و ذرائی، تنگ دستی کے اندر بھی، اور جب ان کے پاس پیسے ہوں خوشحالی میں اس وقت بھی وہ خرچ کرتے ہیں. وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایسے محسنین سے خود اللہ پیار کرتا ہے. اب یہ تو ساری کی ساری خصوصیات تھی جو اوپر بیان کی گئی ہیں، لیکن انسان کے اندر تو ظاہر ہے کہ ہر چیز مرکہ نبی چیز سے پاک ہے. بصورت دیگر سارے انسان تو خطا کار ہی ہیں، اور سب سے اچھا خطا کار وہ جو سب سے جلدی اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا فعلوا فاحشات، ان محسنین سے جب کوئی فاحش سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ کوئی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے. ایک وہ گناہ جن کا تعلق شہوات سے ہے، ان کو بالکل الگ کیٹیگری میں لے آتا ہے، اور دیگر تمام کے تمام جو گناہ ہیں ان کو دوسری کیٹیگری میں لے آتا ہے. گویا محسنین سے بھی چانس موجود ہے کہ ان سے خطائیں ہوں، اور ہر قسم کے گناہ ان سے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ نبی تو نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، مان ان کو اللہ یاد آتا ہے، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، بھلا تیرے علاوہ اور کون ہے جو میرا خطا معاف کر سکے. تو یہ محسنین کی صفات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات عطا فرمائے. میرے ذہن میں آج کوئی اور آیت تھی، لیکن حضرت صاحب نے چونکہ یہ آیتیں ان کا ترجمہ کیا تھا، اور یہ میری بھی بہت پسندیدہ رہی ہیں آیتیں. جب میں ذکر میں آیا تو پھر یہ آیتیں میں یاد کرتا تھا، جہاں بھی اللہ کے ذکر کا لفظ آتا تھا اور یہ چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی تھی تو میں ان کو یاد کر لیتا تھا اسی وقت. تو میں آج آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا تھا وہ تعویل کے متعلق کرنا چاہتا تھا کہ ہر شخص نے تعویل اپنے خیل کے مطابق کھینچی ہے. افمن شرح اللہ صدر للاسلام فهو علی نور من ربہ، افمن شرح اللہ صدر، بھلا جس کا سینہ کھول دے اللہ اسلام کے لیے، فهو علی نور من ربہ، پھر اپنے رب کی طرف سے وہ ایک نور پر ہوتا ہے، اس کو ایک نور عطا فرما دیا جاتا ہے. فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، برعکس اس کے جس کا سینہ نہ کھلے اور جس کے دل کے کواڑ سخت ہوں، اللہ کا ذکر ان کے اندر داخل ہی نہ ہو، اس کے لیے ویل ہے، سخت دل والے کے لیے ویل ہے. اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے. تو جو تعویلیں کی جا رہی ہیں آج تک وہ یہی ہے کہ سینہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دماغ بس دین کے اوپر بہت زیادہ چلنا شروع ہو گیا، آپ دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں، یہی سینہ کھلنا ہے. جہاں تک میں نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے ان لوگوں کو، تو ان کا سینہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ دین کے معاملات میں دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں اور بڑی بڑی تقریریں کر ڈالتے ہیں، ان کا سینہ کھل گیا. ایسی بات نہیں.
جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا تھا کہ سینے کے اندر کیا ہے اور سر کے اندر کیا ہے. اگر وہ ہی نہیں جانے گا تو پھر بھلا جانے گا کون؟ جب وہ بات سینے کی کہتا ہے تو پھر سینے کے اندر کچھ موجود ہے. وہ موجود ہے جس کا سائنس اپنی تمام تر انسٹرومنٹیشن کے ذریعے ترقی کے باوجود اس کا خبر نہیں لگا سکی کہ وہ کیا چیز ہے. وہ چیز سینوں میں موجود ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ چیزوں کے متعلق، چیزوں کی حقیقت کا علم ہے کہ چیزیں ہیں ان کی حقیقت، ان کا سٹرکچر، ان کا ایکشن، ان کے اثرات اس کے اوپر بحث کرتی ہے. اور جو چیزیں وجود سے ماورا ہے جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں، جو انسان کے تخیل کے اندر نہیں آتی، اس کی مشینری کے کنٹرول میں نہیں آتی، اس کے بارے میں سائنس کچھ کہنے سے قاصر ہے بلکہ انکار کرتی ہے. اور ہمارے ہاں بھی چونکہ جدید نظریات کا انحصار ہوا، جیسے ہی ہمارے ہاں سائنس جو بہرحال اس دور کے اندر تو انہی یورپ کے لوگوں نے ہی اس کو ترقی دیا کو شروع تو بقول جج صاحب کے مسلمانوں نے ہی کی تھی، لیکن اس کو ترقی تو بہرحال انہوں نے دی ہے. تو کلچر اس کا چلا کرتا ہے جس کا غلبہ ہو. جو پست قومیں ہیں، جو مغلوب قومیں ہیں، ان کی خوبصورت چیزیں بھی دب جایا کرتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال اپنے ہی علاقے کی دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے شاعروں کے جو ہیں وہ تذکرے کیے جاتے ہیں، انگریزی شاعروں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے جو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ہیں اس کی شاعری کو دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے؟ اس نے نیچر کے متعلق کتنی خوبصورت شاعری کی، اس نے تصوف کے متعلق کتنی خوبصورت شاعری کی کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ایک مغلوب قوم ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آئی اور ورڈز ورتھ صاحب سامنے آ گئے، حالانکہ اس سے کئی درجہ بہتر ان کی شاعری موجود ہے، نیچر کے متعلق ان کی خوبصورت شاعری موجود ہے. یہی حال قوموں کا ہوا کرتا ہے. جو قومیں مغلوب ہو جائیں ٹیکنالوجی کے حساب سے، قوت کے حساب سے، پھر ان کے کلچر چلا نہیں کرتے، کلچر اسی کا چلا کرتا ہے جو غالب ہو. کسی زمانے مسلمان غالب تھے تو ان کا کلچر چلا کرتا تھا. اب یہ مغلوب ہے اور ہمارے پاس صرف قصے کہانیوں کے علاوہ دکھانے کے لیے کوئی سوسائٹی نہیں ہے، اور ہمارے لیڈر جیسے ہیں وہ آپ کو علم ہے اور ان کے لیڈر جیسے ہیں وہ بھی آپ کو علم ہے. تو ہمارے علماء کرام بھی اس جدیدیت سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی کبھی اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اللہ جو سینے کا کھلنا کہتا ہے اور ایک جگہ نہیں 12 جگہ کہتا ہے، اور کافی انداز کے اندر اللہ کہتا ہے کہ جن کا سینہ تنگ ہو گیا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑی مشکل سے آسمان کے اوپر چڑھ رہے ہوں، ان کی سانس پھول جاتی ہے اور وہ جادو سمجھتے ہیں، اور جن کا سینہ کھل جاتا ہے ان کے اوپر حقائق کھل جاتے ہیں. تو بات سینے کے کھلنے کی کہی گئی ہے. اللہ جو اس پوری کائنات کا مالک ہے اور جو انسان کا خالق ہے، اور اس جیسا خالق کوئی نہیں ہے. الخالق الباری المصور، وہ خالق بھی ہے، وہ مطلب ایجاد کرنے والا بھی ہے، وہ ڈیزائن کرنے والا مصور بھی ہے. وہ اتنا عظیم الشان رب ہے کہ جس نے یہ تخلیق کی ہے. اگر آپ اللہ کے صفاتی ناموں کے اندر سب سے بڑا نام ڈھونڈے اور آپ غور کریں کہ اللہ کا نام کون سا سب سے بڑا ہو سکتا ہے صفاتی ناموں کے اندر، تو وہ سب سے بڑا نام خالق کا ہے. کہ تخلیق کرنا بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، باقی سارا پروسیس تو تخلیق کے بعد کا ہے نا. ایک چیز کو بنا دیا کسی چیز کے نہ ہونے سے، جو بالکل کچھ ہی نہیں تھی چیز، اس میں سے یہ خوبصورت سی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا کے کھڑی کر دی. یہ اس کی صفت خالق کی مرہون منت ہے، اور آگے پھر وہ عزیز الحکیم بھی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سینہ کھل جائے، اور جن کو کتاب دی گئی ہے اور جو کتاب کی تفسیریں لکھتے ہیں اور بڑے بڑی چیزوں کے اوپر وہ
मज़ामीन लिखते हैं और भरी हुई होती हैं, लेकिन इस तरफ से वो नजरें चुरा के चले जाते हैं कि अल्लाह क्यों कह रहा है सीना खुलने का, जबकि साइंस तो कह रही है कि दिमाग जो इंटेलिजेंस के जो मरकज है वो अकल है, यही सारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, और बात सीधी सी है, कंट्रोल कर रहा है, इसमें कुछ शक ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ईमानियात के लिए इसकी बात तो कम ही करता है, इसकी बात करता है, सीने की बात करता है। जब वो सीने के खुलने की बात करता है तो इसका मतलब है सीने के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है जो इनकी अकूल से मावरा है, इनकी अकलों में नहीं समा सकता, बल्कि उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से और रूहानियत से उसका ताल्लुक है। और इसी सीने को खोलने के लिए तमाम पैगंबर आए। और सीने के अंदर क्या चीज है जो हमारे रूहानी साइंसदान हैं, जिनको हम सूफी कहते हैं, ये दरअसल मुहक्किक होते हैं। जिस तरह एक वो फिजिकल मुहक्किक है, तो उसने चीजों के मुतालिक जो है वो तहकीक की, और चीजों के मुतालिक उसने आपके सामने साइंसदानों ने बहुत सारी चीजें ला के रख दी, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं, हमारी जिंदगी में उनका फायदा आ रहा है। अल्लाह की बनाई हुई चीजों के मुतालिक उन्होंने तहकीक की और उसके मुतालिक उन्होंने कवानीन और उनके फायद हमारे ऊपर खोले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको अजर दे। इसी तरह जो रूहानी मुहक्किक हैं उन्होंने भी तहकीक की, और ये तमाम चीजें जिनके मुतालिक कुरान करीम इशारे करता है, वहां उनको अल्लाह ताला ने उनकी तहकीक की वजह से, जिस तरह वो बता रहे थे उस दिन, हमारे जज साहब भी बता रहे थे कि वो बंदा जो है वो उसका कार्बन का वो बना रहा था स्ट्रक्चर, तो उसने ख्वाब में देखा और वो धुन उसके मतलब इस तरह आई और उसने वो उसका पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। इसी तरह इंसुलिन वाले ने देखा कि दो किस्म के मटेरियल जो है वो आ रहे हैं, तो वो उनको अलग नहीं कर सक रहा था। फिर ख्वाब में उसने देखा एक लैब के अंदर से जहां से निकल रहा था, उसे कहा कि इसको बंद कर दो, वो बंद हो गया। तो ये मुराकबा या ख्वाब में गाइड किया जाता है। इसी तरह जो रूहानी मुहक्किक है, जो रूह के मुहक्किक हैं, जिनको सूफिया कराम कहते हैं, उन्होंने इन आयात के ऊपर गौर किया और इसकी हकीकत को सामने ले आए। और हकीकत यह है कि सीने के अंदर लताइफ मौजूद हैं। बल आयात तुम बय्यिनात, बल्कि हमारी शक और शुबे से बाला आयात, फी सुदूरिल्लज़ीना उतुल इल्म, सीनों के अंदर मौजूद है। उतुल इल्म, जिनको हमने इल्म दिया उनके पास जाओ। देखें, ये इस आयत से भी आगे इन्होंने गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला इस आयत के अंदर क्या कह रहा है। बल आयातुम, बल्कि वो निशानियां जो तुम तलब करते हो, वो निशानियां जो आलमुल गैब के मुतालिक है मौजूद है। बय्यनात, बगैर शक और शुबे के। बय्यनात उसको कहते हैं जिसमें शक न हो। कुरान जो पूरी की पूरी खुली हो। कुरान करीम में दो किस्म की आयात है, मुहकमात यानी जो बिल्कुल आपके समझ में आए, मुतशाबिहात, मुतशाबिहात भी हैं। लेकिन जो सीने के अंदर आयात है इनके अंदर मुतशाबिहात नहीं है, ये बय्यनात है सारी की सारी। तो इसका मतलब है ये, इससे मुराद, इन आयात से मुराद कुरान की आयात नहीं है। यानी अलिफ लाम मीम से लेकर बन्नास तक अगर कोई शख्स याद कर ले और वो कहे मेरे सीने में ये मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा नहीं, क्योंकि उनके अंदर बय्यनात भी हैं, मुशाबिहात भी हैं। और यहां सिर्फ बय्यनात की बात की गई है। बल आयात बय्यिनात, बल्कि हमारी वाज़े बय्यन निशानियां मौजूद है सीनों के अंदर। उतुल इल्म, जिनको हमने इल्म दिया वो आपको इनको पढ़ना सिखाएंगे, खोलना सिखाएंगे। तो ये चीजें कुरान करीम के अंदर बयान की गई है। जाहिर है कुरान करीम उतुल इल्म की भी बात करता है, और उतुल इल्म की बात कहाँ करता है? इन निशानियों के बारे में करता है। जिस तरह वो लोग कहते हैं कि हमने फलां तफसीर पढ़ी, हमने फिका पढ़ा, हम आलिम है, अल्हम्दुलिल्लाह है आलिम, लेकिन इनको भी अल्लाह ताला उतुल इल्म कह रहा है, ये भी आलिम है। तो किसी एहसास कमतरी में आपको मुब्तला नहीं होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने इन आयात को खोलने का इल्म दिया है तो आप उतुल इल्म है, और आपको ये डेजिग्नेशन किसी मदरसे से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से नहीं दी जा रही, बल्कि अल्लाह ताला खुद आपको दे रहा है उतुल इल्म। तो आप उतुल इल्म में हैं अगर आप लोगों के ये लताइफ खोल रहे हैं, और इसके जरिए वो लोग
सकीनत में आते हैं, सुकून हासिल करते होता है, उनकी जिंदगी में इत्मीनान आता है, वो अल्लाह की तरफ से यकसू हो जाते हैं और अल्लाह ताला उनको अपने करीब महसूस होता है, तो यकीनन आप भी उतुल इल्म में से हैं और अल्लाह के यहाँ आपका दर्जा आलम का है, आप आलम रूहानियत के आप आलम है और आपको आलम मेरे अल्लाह ताला ने कहा है। बलु आयात बय्यिनात, बल्कि हमारी खुली निशानियां हैं, फी सुदूरिल लज़ीना, सीनों के अंदर मौजूद है, यही लताइफ मौजूद है और ये रूहानी है और इनको रूहानियत के जरिए ही महसूस किया जाएगा। और इनको कौन खोलेगा, कौन पढ़ना सिखाएगा? उतुल इल्म, जिनको हमने इल्म दिया, जो अल्लाह ताला की तरफ से जिन्होंने इल्म हासिल किया, वो इनके बारे में आपको बताएंगे। तो कुरान करीम में आप जगह जगह देखते हैं, एक तो पूरी सूरत इस चीज के बारे में नाजिल हुई है, अलम नशरह लका सदरक का, क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया। तो इसको एक बहुत ऊंची नेमत के तौर पे अल्लाह ताला अपने हबीब को बयान कर रहा है और हजरत मूसा मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। तो सीने का खुलना जो है उस इल्म का हासिल होना है जो हकाइक का इल्म है, वो इल्म जो बतौर दाई आप लोगों के सामने पेश करेंगे। इस कायनात का एक इलाह है, उसका नाम अल्लाह है और उसने इसके बाद एक जहान बनाया, जहान खत्म होने वाला नहीं, उसके अंदर एक उसने जन्नतें बनाई हैं और उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा एहतमाम किया, इनामात रखे हैं। और इस आने वाली जिंदगी के बाद जिसको अल्लाह ताला चाहेगा, जिस पे अल्लाह का फजल और करम हो जाएगा, ईमान वाला मुत्तकी, जिसको अल्लाह ताला मग़फ़िरत अता फरमा देगा, उसका ठिकाना उन जन्नतों में होगा और दूसरे लोग जो है बदकिस्मत लोग, वो दूसरी तरफ जाएंगे, अल्लाह सबको बचाए। तो ये एक बाकायदा इल्म है। इस इल्म की तरफ अगर लोग नहीं आए, उन्होंने नहीं सीखा और इसको उन्होंने दूसरे नाम दिए, बजाय इसके कि वो इस सीने के खुलने के मुतालिक सीखते, जिस तरह दूसरी चीजें उन्होंने सीखी हैं साल साल लगा के, इनको सीखते, इस सीने के खुलने की लताइफ को खुलने को महसूस करते और इन अनवार तजलियात को महसूस करते, तो अब हम एक आला तरीन कौम होते अगर इस इल्म को रिकग्नाइज कर लिया जाता। लेकिन ये जो इल्म चल रहा है, ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह इसको चलने का हक था, क्योंकि इसकी रुकावट भी वही लोग हैं जो दूसरे इल्म के जो है वो अलमबरदार है और इस इल्म को वो नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उनको जिस्मानी तौर पे महसूस होता नहीं है। जब तक वो महसूस ना करें कैसे महसूस होगा। लेकिन कुरान करीम इसके बारे में बार बार कहता है और इसके बारे में भी वो तावीलात घड़ के ले आते हैं। वो सीने का खुलना अकल का चलने को कहते हैं कि जहन बहुत तेजी से चल गया। भाई ये अल्लाह ताला सीने की बात कर रहा है, उसको पता नहीं था ब्रेन अलग चीज है, अकल अलग चीज है और ये सीना अलग चीज है। वो ईमानियात के मुताबिक जितनी चीजें उनका ताल्लुक सीने से बता रहा है। तो अगर आपने गौर नहीं किया, आपने इसको इल्म नहीं समझा, तो ये आपकी नालायकी है। और ये जिन्होंने ये हासिल किया, और सहाबा कराम को तो इल्म हासिल हो जाता था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें उनको हासिल हो जाती थी, पूरे फयूज और बरकत पीक के ऊपर चले जाते थे। कल ही मैं एक हदीस पढ़ रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि एक जो लौंडी थी उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, थी बेचारी लौंडी और थी मुसलमान। तो अल्लाह के हबीब के पास आई कि ये बीमारी जो है ना, इस बीमारी को मुझसे हटाएं। अब मैं हैरान हो गया कि अल्लाह के हबीब ने कहा कि ये दुनिया तो थोड़ी सी, जिंदगी थोड़ी सी है, अगर तुम अल्लाह के साथ से अजर चाहती हो, अल्लाह आखिरत चाहती हो या दुनिया में ये चाहती हो, दुनिया चाहती हो, तो मैं ठीक कर देता हूं। अगर तुम आखिरत की तालिब हो तो तुम बर्दाश्त करो इस तकलीफ को। तो उस अल्लाह की बंदी ने, और मैं हैरान होने वाली चीज ये थी कि एक लौंडी है और उसका ईमान इस कदर ज्यादा बुलंद है कि वो कहने लगी मुझे आखिरत मतलूब है, ये बीमारी है तो होती रहे, बस इतना कीजिए मेरे लिए, इतना दुआ कीजिए कि जब मेरे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मेरे जो
शर्मगाह है वो खुल जाती है, कपड़ा यानी बेहोशी के आलम में वो बेचारी ऐसे हो जाती थी। तो दुआ कीजिए कि वो ना हो। अल्लाह के हबीब ने दुआ की, वो खत्म होगी, उसकी बीमारी उसको रही। और मैं कल से उसी के मुतालिक सोच रहा हूं कि इतने अज़म वाली अगर एक लौंडी हो सकती है, तो सहाबा कराम जो बिल्कुल आपके आजाद थे और आपके इर्द गिर्द थे, उनके इस्तकामत, उनके अज़म, उनके इल्म के क्या हाल होगा। तो इस तरह उनका आखिरत के ऊपर यकीन था, और वो यकीन ज़ाहिर है किसी लेक्चर से तो नहीं आया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के चंद लम्हात किसी को मिल गए तो उसके अंदर उंडेल दिया गया सारा, और उसको पीक पे ले गए। तो ये वो इल्म था जो सीने का इल्म था, जो मान लेने का इल्म था, सब्र और इस्तिकामत जो पैदा करता था। तो ये सीने के जो अलूम है, ये जब तक आम नहीं होंगे और इनको पुरानी अलूम के तौर पे माना नहीं जाएगा, और इनको यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इनको पढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक जो है हम मगलूब रहेंगे। हमारे पास एक ही इल्म बचा है जिसके अंदर हम मगरिब से बहुत ज्यादा आगे हैं, और वो इल्म अल्हम्दुलिल्लाह ये रूहानियत का इल्म है। इस इल्म के अंदर हम आगे हैं, बाकी तमाम इल्म हम वहीं से हासिल करते हैं। हमारी तमाम टेक्स्ट बुकें जो है वो वहीं से लिखी हुई आती है, उन्होंने मेहनत की और हम उनसे फायदा उठा रहे हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो कौम जैसी होगी वैसे ही करेगी बहरहाल। तो मैं कहता हूँ गलबा खुद ही बोलता है। आप मगलूब होते हैं तो आपका इल्म भी पस्त हो जाता है, फिर आपके माजी के किसी कुछ काम नहीं आते। आप किसी को इल्म की बुनियाद पर रिजेक्ट कर सकते हैं जब आपका इल्म गालिब हो, और यकीनन अल्लाह ताला ने हमें ये गालिब इल्म दिया है। और ये इल्म सीनों का इल्म है, सीने खोलने का इल्म है, ये रूह को एक्टिव करने का इल्म है, ये लोगों को एक और नजारा दिखा देने का इल्म है, जिसको अल्लाह ताला कहता है कि इनकी आंखें ही नहीं है, जिन आंखों से ये सारी चीजें देख रहे हैं जिस्मानी, तो अल्लाह ताला इनको मान नहीं रहा है। अल्लाह ताला उस आंख को मान रहा है जो हक का नजारा देखने वाली है, उस दिल को मान रहा है जो हक के मुतालिक शहादत देने वाला है, उन कानों को कान मान रहा है जो हक सुनने वाले हैं। तो ये सारे के सारे अलूम अफमन शरह सदर अल इस्लाम, ये सीना इस्लाम के लिए खुलेगा तो आप इस्लाम में दाखिल होंगे, और सीना नहीं खुलेगा तो अकल की जोर पे आप लगाते रहें। कितनी किताबें लिखी हुई हैं और कैसे कैसे आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है मुकर्रर सुनते हैं, जो बातें करते हैं तो मजमा होता है, लेकिन जब उठते हैं तो ऐसे कपड़े झाड़ के चले जाते हैं। माशरे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। तो माशरे में जब तब्दीली आएगी जब उनको हम ये इल्म हकीकी उनको उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे। और अब जिस तरह 21वीं सदी के अंदर आप बटन दबाएं आपको सारी चीजें मिल जाती हैं फौरन, और ये अमानुल्लाह खान अक्सर कहा करते हैं कि स्पीड अप हो गया है, हर चीज स्पीड अप हो गई है, जल्दी से आप सारे अलूम हासिल कर लेते हैं, या इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में, आप जो चीज भी चाहें वो रिसर्च करके उसके ऊपर आप उसका इल्म हासिल कर लेते हैं। इतने ज्यादा इल्म की एक्सप्लोजन हो गया, इल्म का धमाका हो गया है। तो क्या रूहानियत है वो उसी ऊंटों वाली और घोड़ों वाली रहती? ये भी तेज हो गई है, और ये तेज हमने नहीं की, हमें तो सिर्फ इतला दी गई है और हमने उस इतला के ऊपर यकीन कामिल किया और आगे हमने उसको कन्वे कर दिया है और उसके जरिए लोगों ने ये चीज हासिल की है। अब जब आप इसको बड़ी स्टेज के ऊपर मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी तो हम चंद लोग हैं, लेकिन जब आप खुद, जिस तरह अजय साहब कहते हैं कि आप जो है आगाज करने वाले हैं, दावत का आगाज आपसे हो गया, आप अव्वलीन में से हैं। तो जब आप अव्वलीन में से हैं और आप महसूस भी करें कि आप उतुल इल्म भी हैं, यानी अल्लाह ने आपको आलम भी कहा है, और दिल का अल्लाह अल्लाह करना, ये मार्फत, दिल की मार्फत जो है ये बहुत ऊंचा इल्म है। 1000 किताबें पढ़ने से बेहतर है जिसका दिल अल्लाह अल्लाह की गवाही दे कि अल्लाह की मार्फत उसको हासिल हो गई। ऊंचा इल्म है, इसको ऊंचा इल्म आप समझे, अल्लाह ताला इसको ऊंचा इल्म कहता है। तो जब आपको इसका एहसास भी हो गया और रैपिडली तेजी के साथ ये आपको मिल रही है, तो फिर यकीनन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप को अल्लाह की बारगाह में और रसूल के करीम की बारगाह में पेश करें। या अल्लाह, मैं जैसा कैसा हूं मुझे कबूल कर ले, मैं ये काम करूंगा। यकीन करें
आप जैसे कैसे भी हैं आपको कबूल कर लिया जाएगा। और इस गए गुजरे दौर की वजह से जब अजर का दिन आएगा, जब हिसाब किताब का दिन आएगा, तो आपकी खिदमत की वजह से अल्लाह ताला आपको अपने दोस्तों की सफ के अंदर खड़ा करेगा और अल्लाह ताला बगैर हिसाब के आपको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसके ऊपर जज साहब भी अक्सर तवज्जो दिलाते रहते हैं और हमारी भी तवज्जो है कि ये काम आपने करना है और आप ये काम उस वक्त करेंगे जब आप अपने आप को पहचान जाएंगे, क्या आपको क्या चीज दी जा रही है और आप क्या चीज बन चुके हैं और आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से हो चुका है। जब आप महज लफ्जों से मरूब नहीं होंगे, कहानियों से मरूब नहीं होंगे, जब आप सीने से मरूब होंगे, जब आपको पता लगेगा कि आप जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं उसके सीने से फैज आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आपका क्राइटेरिया ही बदल जाएगा, आपकी नजर बदल जाएगी, आपकी फहम बदल जाएगी। तो ये चीजें तावीलात से निकाल के इनको हकायक के अंदर लेके आए। सीने के अंदर इल्म मौजूद है, वो इल्म जो हकीकत का इल्म है, वो इल्म जो ईमान का इल्म है, वो जो इल्म आलिमुल गैब के मुतालिक इल्म है, वो ये ऐनुल यकीन वाला इल्म मौजूद है, वो ये लताइफ है और सीने का खुलना है। तो अल्लाह ताला आप सबको भी और मुझे भी ये काम करने की तौफीक दे दे और हमारा खात्मे तक हम ये काम करते रहें और अल्लाह ताला इस जिक्र के अंदर हमें हमारी खताएं बख्शते हुए हमें इस जिक्र में ही रखे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है, जैसे वो अभी खलील साहब ने आयत पढ़ी थी, अल्लाज़ीना ज़फ़अलू फ़ाहिशातन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़ाकुरुल्लाह। तो ये सारे गुनाह हमसे होते रहेंगे और हम माफी भी मांगते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ करता रहेगा। तो इस तमाम हमारी गलतियों और कोताहियों समेत वो अल्लाह ताला हमें कबूल कर ले और हमसे कभी ये रहमत अलग ना करे और इस फैज जो फैज बरसता रहे ये बरसता ही रहे और हमारी गलतियां और कोताहियां माफ होती रहें और हम इस रास्ते पे चलते रहें, फिर कामयाबी है। तो जब आप अल्लाह ताला को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह ताला भी आपको नहीं छोड़ेगा। तो आप अल्लाह के आगे रोना मांगना, इस्तिग़फ़ार करना ना छोड़ें। गलती हो गई तो माफी मांगे, अल्लाह का जिक्र करें, गुनाहों की माफी का मुराकबा करें, अल्लाह अल्लाह करें जुबान से भी दिल से भी और अल्लाह से माफी मांगे तो माफ कर दिया जाएगा और फैज में इजाफा होता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कबूल कर ले।